this is a very special interview. And we are doing this interview 2 days after her retirement for a reason. Because on the day of retirement, everything becomes tailored to that. It becomes a news interview. Rani, you are retiring, 15 years for India. There are some questions that you must ask. Why now, etc., etc. You are not allowed or you are not able to really celebrate a career. And I've done many such retirement interviews from Tendulkar down. Rani Rampal is a very special athlete. Very special athlete. I have seen her career from day one. She had invited me to go to her farewell. Unfortunately, because of the cyclone, whole of Kolkata was flooded. I could not travel. Airport was shut. That is why I was not there. Otherwise, I would have 100% been there. But she is one of my favorite athletes of all time. And I've got no problem in saying that. Every time I think of Rani Rampal, I think of that Tokyo connection. We are both adults. She is younger to me by 20 odd years, maybe by 15 odd years. But that Tokyo day, India had lost that 3-4 match to Great Britain. She was passing through the mixed zone as the captain of the Indian team. And I was there. Both of us looked at each other. I was supposed to ask questions. She was supposed to answer. Both of us looked at each other and all we did was cry. Rani as the captain couldn't speak. I as a journalist couldn't speak. That is the bond. And I told her that Rani, you may have lost the medal. You have inspired millions of girls back in India. That is the legacy of Rani Rampal. She will always remain a cult who has inspired millions in India. Rani Rampal, can you now believe that a career like yours could actually happen from small town to an icon like this when you now look back? थोड़ा सा बताइए in detail. When you look back, Rani Rampal actually happened in India. Fascinating. Thank you so much, Boria sir, for inviting me for this interview. And yes, आपने मेरी जर्नी बचपन से फॉलो किया है हमेशा से ना. एंड अभी मैं भी पीछे मुड़ के देखती हूँ तो शायद मुझे भी बिलीव नहीं होता कभी ना कि एक 7 साल की लड़की जिसने हॉकी खेलना शुरू किया था, कभी वो इस मुकाम तक पहुँचेगी. एंड बहुत साल लगे जहाँ पे थे 15-16 साल कंट्री के लिए खेलना. उसके लिए आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता, बिकॉज यू आर अ ट्रू पैशनेट फैन आई कैन से ऑफ स्पोर्ट इन इंडिया. बट या काफ़ी स्ट्रगलिंग था बचपन का, काफ़ी स्ट्रगल्स रहा. एवरीवन नोज मैं किस फैमिली से आती हूँ. बट या एक जुनून जो था ना वो हमेशा था कि लाइफ में कुछ तो करना है कंट्री के लिए ना. एंड स्पेशली एक वुमेंस हॉकी के लिए एक ऐसा करना है कि लोग वुमेंस हॉकी को जाने, क्योंकि आज तक हम हमेशा सिर्फ मेंस हॉकी की बात होती थी कि हमारे पास इतने ओलंपिक मेडल हैं, लेकिन वुमेंस हॉकी के लिए कभी इतना बात नहीं होता था. सो दैट थिंग वाज इनसाइड मी ऑल द टाइम ना कि वुमेंस हॉकी को एक जगह पे तो लेके जाना है कि लोग वुमेंस हॉकी देखना पसंद करें. एंड मैंने कभी नहीं सोचा था जब हॉकी शुरू की थी कि कभी 2 ओलंपिक गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, 254 गेम्स इंडिया के लिए खेलेंगे, 205 गोल करेंगे. बट डेफिनेटली टोक्यो ओलंपिक्स की जो आप बात कर रहे हो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वुमेन्स हॉकी के भी लिए लोग सुबह 6 बजे उठ के मैच देखेंगे. तो दैट्स द चेंज मैं लाना चाहती थी हमेशा से ना वुमेन्स हॉकी के लिए इस कंट्री में. बट आई थिंक इंडिया के लिए हर मैच खेलना journey was really tough, but I think it's all worth it. It is 100% worth it for sure. 100% worth it for sure. But my point is, ये जो आपने कहा ना कि एक जुनून था, and मैं ये सवाल दोबारा पूछ रहा हूँ, ये जुनून आया कहाँ से? Because I also want to become, maybe somebody wants to become the next Rani Rampal. But how? कहाँ से ये जुनून आया? Because आप अलग इसीलिए हो. जुनून तो किसी में भी हो सकता है कि यार मुझे करना है, बट कोई फैसिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत प्रिविलेज से आ रहे हो, दैट देयर इज इनफ एंड मोर मनी. दिस इज अ करियर दैट कुड हैव गॉन रॉन्ग. ये जुनून आया कहाँ से? एंड आई वांट टू रियली अंडरस्टैंड रानी रामपाल इन दिस इंटरव्यू, बिकॉज and I want millions to see this in the future to become the next Rani Rampal. That's why I'm asking this. आपका ये जो एक क्रेविंग था कि मुझे करके दिखाना है, मुझे ये कहाँ से आया? सर एक्चुअली जब मैंने शुरू किया ना तो सबको पता है मेरे फादर जो थे, पिता मेरे घोड़ा गाड़ी चलाते थे. एंड घर
में भी इतनी प्रॉब्लम्स रहती थी कि हम एक कच्चे घर में रहते थे, बारिश आना तो घर में पानी भर जाना। तो बाहर बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं, लाइक एक टाइम खाना मिलना तो सेकंड टाइम के लिए सोचना पड़ता था। अकेडमी में हम सबका एक कोच की तरफ से वो रहता था कि सबको ग्राउंड में डेली जो है 500 ग्राम दूध लेके आना है, एंड मैं तो उसमें लाइक 300 ग्राम तो पानी लेके जाना। तो पता समटाइम्स ना लाइफ में आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते, फाइनेंशियल थिंग नहीं होती, बट आई थिंक दैट एक मॉरल सपोर्ट जो थी ना वो फादर मदर से थी कि तू कुछ कर लाइफ में। बिगनिंग में नहीं थी क्योंकि आई वॉज अ गर्ल चाइल्ड। हरियाणा में 20-22 साल पहले अगर देखें तो पेरेंट्स भी उतने अवेयर नहीं होते थे स्पोर्ट्स को लेके, एंड डेफिनेटली लड़कियों को तो लेके स्पोर्ट्स खिलाना सोचना पड़ता था कि लड़की है तो स्पोर्ट्स खिलाएं या ना खिलाएं, क्योंकि हरियाणा में एक जेंडर इशू बहुत रहता था आज से भी, आज 25 साल पहले ना। बट अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई सोशल मीडिया के कारण, पेरेंट्स भी अवेयर हो गए। बट मुझे ये लगता था हमेशा बचपन में ना कि आप गरीब तो हो सकते हो लेकिन ना आपके अंदर करने की इच्छा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जो भी लोग वहाँ तक पहुँचे हैं ना, उस लेवल तक पहुँचे हैं, वो भी इतनी आसानी से तो नहीं पहुँचे। उनको भी वो लग्ज़री नहीं होगी, सब नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उन हालातों में भी ना कभी ज़िंदगी में हार मानना नहीं सीखा। तो मेरा भी यही, मेरे पास जो है ना, शायद मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं थी, और हॉकी के अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, और मैं शाबा से बिलोंग करती थी जहाँ पे सिर्फ हॉकी खेली जाती थी, जहाँ से मोर देन 80 लड़कियाँ इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं अभी तक। तो ऐसी फैमिली से मैं थी नहीं कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनने का कुछ सोच सकती कि मैं अच्छी पढ़ाई कर लूँगी तो मैं ये बन जाऊँगी। लाइफ में जब आपके पास कोई चॉइस नहीं होती ना, कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आपको यही लगता है कि जो आपके सामने है आप उसी को लेके बेस्ट क्या कर सकते हो। बट डेफिनेटली मैंने बहुत साल वो एक डिसिप्लिन फॉलो किया कि सुबह 4 बजे उठ के ग्राउंड जाना है तो जाना है, कुछ भी हो जाए, बारिश ठंड गर्मी, देन स्कूल जाना है तो जाना है, देन शाम को ट्रेनिंग जाना है। लाइफ में कभी कोई वेडिंग, बर्थडेज, कोई फेस्टिवल, वो सब कभी सेलिब्रेट करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि एक विजन था, ऐसा था कि अगर ये गरीबी हमने चेंज ना की ना, मैंने चेंज ना की एटलीस्ट हॉकी के जरिए, तो जो पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया ना, हमेशा से संघर्ष किया, हमारा भी वही संघर्ष हमेशा के लिए रहेगा, और नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी होगी, मतलब हमारे बच्चे एंड ऑल, उनका भी वही संघर्ष रहेगा। तो वो एक जो टैबू था ना, वो तोड़ना बहुत जरूरी था। मुझे था कि लड़कियों के लिए ना एक अच्छा ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि पीपल से कि हमारी लड़की हॉकी खेलेगी एंड रानी रामपाल बनेगी। तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल था, बहुत सारी ऐसी टाइम भी आता था जब लगता कि पता नहीं जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वहां तक जाएंगे या नहीं जाएंगे। एज यू सेट कि कुछ भी गलत हो सकता है, जब आप किसी चीज के लिए सोचते हो। बट या आपके ऊपर आई थिंक वो गॉड की ब्लेसिंग्स भी बहुत जरूरी होती है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, टीचर की ब्लेसिंग्स। तो आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, कोच मिले, एंड स्पेशली इतने वेल विशर्स थे जो मेरी जर्नी में मुझे हेल्प करते गए, उनकी ब्लेसिंग्स, और ने ऑलवेज मुझे मोटिवेट किया कि मैं कुछ करूं जिंदगी में। थैंक गॉड कि आप डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बने और हमारे जैसे एकेडमिक नहीं बने। रानी रामपाल एक ही होता है। थैंक गॉड आप नहीं बने, थैंक गॉड। आई मीन India needed you. India needed you. Coming to the difference you made, Rani, whether it is Tokyo, whether it is 2010, whether it is 2017, the thing that you did was you were able to instill confidence that we are also good enough. I know Rio bad, and I know what impact it had on you and on others and mental health and all of that, right? I'm aware of that. To be able to come back, that is the story, Run. The story is not success. People are not like Tendulkar. Tendulkar is one in a billion who will forever be, the straight line of, he's a genius. But in our lives, mortal people, we will fail. Sport teaches us how to fail. आपने रियो के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन, वो जुनून कहाँ से आया? बिकॉज हम इंडिया में गाली बहुत जल्दी दे देते हैं, अरे बेकार टीम है, फालतू टीम है, ये नहीं होगा इनसे। एंड मोर सो विथ विमेन। ये ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम, मुझे रियो से टोक्यो वाला ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा समझाइए, एंड हाउ डिड दैट हैपन? बिकॉज आई थिंक इंडियन वुमेन्स हॉकी बिकेम व्हाट इट इज इन दोज 4 years between 16 and 21. डेफिनेटली जब मैंने 2008 में मेरा जो डेब्यू था ना, वो ओलंपिक क्वालिफाइंग ही था, जो मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था, एंड 2008 में हम क्वालिफाई नहीं किए। सो ऑल माय सीनियर्स वर क्राइंग, जिनका 10 साल का करियर हो चुका था, एंड दे वर लाइक उन्होंने बहुत बेस्ट ट्राई किया बट हमने क्वालिफाई नहीं किया।
देन मुझे लगा कि पता नहीं शायद क्यों रो रहे हैं, हम नेक्स्ट टाइम क्वालिफाई कर सकते हैं. But after 4 years in 2000 again didn't qualify. Then I know that 4 years importance, कि वो क्यों रो रहे थे. It's so difficult to qualify for Olympic Games because हर टीम, हर एथलीट बहुत फाइट करता है उसके लिए ना. And in 2012 I was feeling like after qualifying कि my career is finished. I was like कि इसके बाद कुछ नहीं है, कि हमने 2 बार ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं किया तो किस लिए हॉकी खेलना है, क्यों खेलना है. So many doubts. Then it comes to 2016 Rio Olympics. हमने पहली बार रियो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया. एंड आई वाज वेरी प्राउड कि वो विनिंग गोल मैंने किया उस टीम के लिए ना. बट व्हेन वी वेंट टू द ओलंपिक्स, इट वाज फर्स्ट ओलंपिक्स फॉर एवरी प्लेयर इन द टीम. एंड सब बहुत एक्साइटेड भी थे, नर्वस भी थे. नो एक्सपीरियंस ऑफ ओलंपिक गेम्स एंड इट वाज लाइक अ डिजास्टर फॉर अस. हमने 12th में से 12th फिनिश किया. We didn't win a single game, just एक मैच ड्रॉ किया जापान के साथ फर्स्ट गेम. एंड व्हेन वी केम बैक वी फील लाइक कि हमने क्वालिफाई क्यों किया था. शायद ना करते तो अच्छा था, अगर 12 फिनिश करना था. पीपल यूज्ड टू से क्यों भेजना था इस टीम को ना, 12 में से 12 ही फिनिश करना था. इससे अच्छा तो आप किसी को भी भेज देते, वो भी 12वें नंबर पे आ जाते. एंड एज अ प्लेयर ना यू फील सो गिल्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख एक प्लेयर को ही होता है, उसने उस चीज के लिए बहुत काम किया होता है. इट्स सो इजी सोफे पे बैठ के कमेंट करना ना टीवी के सामने ना कि ये अच्छा नहीं खेले, वो नहीं खेले, बट उस प्लेयर से ज्यादा दुख किसी को नहीं होता. बट आई थिंक समटाइम्स ना यू नीड दिस मोमेंट्स इन लाइफ, अपने आप को चेंज करने के लिए ना. कोई भी फेलियर है ना, या तो आपको बिल्कुल खत्म कर देती है, या वो आपको इतना कुछ अचीव करने के लिए इंस्पायर करती है ना कि नो, ऐसा तो नहीं हो सकता. So I think 2016 was that moment for the women's hockey, जिससे एक women's hockey में एक transition आना शुरू हुआ. That was a turning point for women's hockey. Then हमने 2017 में फिर again सोचा कि नहीं, it's past now, but अभी भी हॉकी बाकी है, हम सब खेल सकते हैं, हॉकी नहीं भूले हम सब. बट शायद हमें काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है. हमने ओलंपिक्स में सीखा कैसे यूरोपियन टीम्स के साथ compete करते हैं, क्या माइंडसेट रहता है. मैं 2017 में we won the एशिया कप. वहाँ से एक मोमेंटम बिल्ड शुरू हुआ कि हम एशिया में बेस्ट कर सकते हैं. नाउ इट्स टाइम टू कम्पीट विद द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अगेन उस पीरियड में हमारे पास वेल लोम्बार्ड आया, साइंटिफिक एडवाइजर. उसने आके एक ह्यूज चेंज लेके आया जो हमारी फिटनेस लेवल में था विमेंस हॉकी के ना. एंड वो फिटनेस लेवल आप सब ने टोक्यो ओलंपिक्स में देखा कि हम किसी भी टीम से वी वर नॉट लेस देन एनी टीम, इतना हीट कंडीशन में भी. सो आई थिंक दैट फिटनेस पार्ट, न्यूट्रिशन पार्ट, आई थिंक उसके बाद कोविड भी आया. कोविड में भी अगेन इट वाज ऑल अबाउट मेंटल टफनेस कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा था उस टाइम पे ना. बट वी वर लकी कि वी वर इन अ साई कैंपस इन बैंगलोर एंड गवर्नमेंट वाज टेकिंग केयर ऑफ अस विद फूड, विद ट्रेनिंग, एटलीस्ट व्हाटएवर इज पॉसिबल, डिस्टेंस में एंड ऑल. But I think those 4 years, yes, best for the women's hockey. कि बहुत सारे changes आए. Then again 2018 Asian Games silver medal आया women's hockey का. So I think nutrition, fitness, then Shud Marai ने आया, उसने structure and all के ऊपर बहुत काम किया. But that was really good period to play for any player hockey. What is the right time? Walk when it's great to crawl. Play when it's great to write. What is the right time? To be a born talent. To be a future champion. To walk alone. Playing under 16 at 12. Facing 20,000 balls with a half-grown spine. What is the right time? Too little to be selected. Too talented to be rejected. The papers, selectors all asking, what is the right time? The right time, it's when you do it. They say you're too young to play, but you're always old enough to dream. Don't worry about what the future will look like. Just prepare for it. Fearless plans from Aegis Federal Life Insurance help you and your family prepare for the future. I have to ask you this. I did not want to, but I have to. मुझे ये बताइए, रिटायर तो आप परसों किए, कल किए, 2 दिन बाद, 2 दिन पहले किए, तो फिर टोक्यो क्यों नहीं?
क्या हो गया? I mean, you were continuing to play. Why टोक्यो का सेम चीज पेरिस में क्यों नहीं हुआ? Why was Rani Rampal not part of the Indian team? Was it politics? Do you not want to talk about it? Was it controversy? Was it something more than that we see on the field? What was it? Why? Or were you not good enough? What is, according to you, the honest assessment? Give me an honest answer. If you don't want to talk about it, tell me I don't want to talk about it. I won't ask the question. टू बी ऑनेस्ट सर, मैं जितने टाइम भी खेली बड़े प्राउड के साथ खेली और मैंने उस जर्सी को बड़े ऑनर के साथ डाला। एंड 15-16 साल मेरे लाइफ में, मेरे करियर में बहुत ही अच्छी मोमेंट्स आई जो मैंने इंडियन टीम के लिए खेले, मेडल्स जीते, ऑल द फेलियर्स जिसने मुझे टीच किया। वो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद भी जो पीरियड था, आई थिंक उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी लाइफ में, एंड आई एम ग्रेटफुल कि वो पीरियड था जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। बट सब कुछ स्मूथ नहीं होता लाइफ में, डेफिनेटली, एंड दैट वाज 2.5 years was not smooth for me also. That was a learning period for me also, कि बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बट आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट पीरियड, क्योंकि आप 16 साल को क्यों भूल रहे हो वो 2 साल के लिए ना। बट अल्टीमेटली यू ऑलवेज नीड टू टेक अ लेसन व्हाट यू कैन टेक फ्रॉम दैट पीरियड। But again, yeah, it's a part of life, part of sport, winning and losing a part of sport, and getting selected and not selected is also a part of life, but you need to move on, you need to accept it, and just always celebrate what you achieve. And I always try, just stay positive and keep fighting. That fighting spirit should be always there, whatever you are doing, and I think that passion drives me every day and still drives me, कि मैं हॉकी के लिए whatever I can do, I will definitely. Okay. So what now, Rani? Because clearly we have not qualified for Rio. So for Paris. If anything, the journey has gone back. The Tokyo high is no longer there. We have to both accept it as sports analysts, fans, players. Both of us need to accept कि हम लोगों के टोक्यो में वर्ल्ड का नंबर 4 में फिनिश किया would have well been a medal. You guys have inspired millions. All of us were talking about women's hockey. After that, we did not qualify for the Olympics. So clearly, the story is not the same. Why? What now? How will Rani Rampal give it back? Because clearly, आप coaching में आ चुके हो. You are part of the Hockey India League. I know you have the ability to. How will we get back to that same position in women's hockey again? And what can you contribute? How do you want to contribute to the sport going forward? Because the sport needs you, Rani Rampal. Yes, we all are sad कि हमने पेरिस के लिए क्वालिफाई नहीं किया, but as I said, it's a part of sport, we lose, we win, and now it's a past, but अभी हमारा सबका टीम का भी फोकस जो है 2028 ओलंपिक्स पे होना चाहिए एज अ फैंस ऑल्सो, क्योंकि उसको हम चेंज नहीं कर सकते जो पीछे चला गया, बट डेफिनेटली वी कैन चेंज द फ्यूचर। अभी हमारी टीम काफ़ी अच्छी है, अंडर द हरिंदर सर, ही इज़ इंडियन कोच, सो काफ़ी यंगस्टर्स भी टीम में आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली जो आई थिंक हॉकी इंडिया का फर्स्ट इनिशिएटिव है कि वुमेंस लीग कराने का, इससे बहुत सारे प्लेयरों को एक अच्छा एक्सपोजर प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो हमें प्लेयर्स जो हैं 2024 या 28 एंड 32 ओलंपिक्स में हम उनको देख सकते हैं, बिकॉज प्लेयर्स को एक एक्सपोजर चाहिए होता है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ना। एंड जब आप वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स के साथ खेलते हो, इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स के साथ खेलते हो, यू गेन कॉन्फिडेंस, आपको लगता है कि अच्छा ये सब हमारे जैसे ही हैं, मतलब ना हमें सिर्फ समटाइम्स हमें पता नहीं होता वो प्लेयर्स कैसे हैं, वी फील लाइक कि पता नहीं दे आर फ्रॉम समवेयर एल्स ऑन द अदर अर्थ, बट yeah, as I said, hockey is my passion, hockey is my love, and the one chapter is closed. I know I cannot play international hockey, but definitely still I have a lot to give to this sport. कि women's hockey league में सूरमा hockey club के लिए मैं as a mentor का रोल प्ले करूंगी, and it's a new journey for me. Again, there will be so many challenges, there will be struggles, but I am ready to do it. क्योंकि हार मानना कभी सीखा नहीं है, and life is all about learning. But definitely मेरे जैसी लड़कियों को अभी बहुत ज़रूरत है मेरी भी, कि मैं उनको हेल्प करूँ, to motivate them. उनको mentally, emotionally भी हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, because physically you can teach them hockey, tactically, technically, but mental part पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है, उनकी इमोशनल नीड्स को भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
एक प्लेयर हमेशा जीत नहीं सकता, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि जब वो हारता है तो कैन वी हेल्प हर टू स्टिल कम बैक, यू नो, टू मेक देम बिलीव कि स्टिल यू कैन प्ले गुड हॉकी. सो आई थिंक दैट्स माय जॉब, यू नो, आई वांट टू डू इट इन द फ्यूचर, कि उन प्लेयरों को उनमें बिलीव कराना कि यू स्टिल हैव हॉकी, यू कैन प्ले हॉकी. यू नो, समटाइम्स वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, सबके अंदर डाउट्स होते हैं. यू नो, प्लेयर समटाइम्स फील मैं खेल सकता हूँ, नहीं खेल सकता, पता नहीं, यू नो, मेरा इंजरी हो गया, मैं कम बैक करूंगा, नहीं करूंगा. So those doubts उनको believe कराना ना कि no, you can do it, you know, and they need those persons in life. So whatever role I can play, coaching, mentor, you know, administrator, whatever, so I am ready to do that. Last question. Firstly, I will tell you two things. One, write your book, because this will become a Bible for adversity to triumph. Write your book. Whatever help you require, you know. I mean, write the book. Write the book because your life is a story. Your life is a story of real inspiration for everyone, including myself. Because each time when I think about people like you, and you feel, yeah, it can be done. So what if there is hardship? It can be done. So definitely it's a story worth telling. Rani, if you look back at a stellar career, incredible career, tell me the one point when you go to sleep and you think, yeah, that day came in my life. Is it when after you went back from Tokyo and many young girls came to receive you in your village in the train station with garlands that you did as a child? क्या वो memory है या कौन सा memory जो एक अगर मैं आपको पूछूं that you want to take it back with you to your grave? I mean, you know, that one thing you did will forever be with Rani Rampal. That for me, I will never, till I die, will not forget that Tokyo moment when you and I met in that and you sent me your match shirt. That is still there with me, forever will be there in my museum. One of my treasured memories of sport. As two adults, we did our best. So what is that one memory, Rani, that you will always cherish as that the highest point of my career? Can I say two, please? I know it's one, but definitely when I go to sleep, you know, that makes me always happy. You know, when I remember, मुझे जब पहली बार इंडियन शर्ट मिली थी, you know, इंडियन जर्सी मिली थी, that still gives me goosebumps कि I was so happy. उस टाइम को सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, but I feel like I couldn't believe कि सच में मुझे मिली है क्या ये जर्सी ना, मतलब, और ये मैं डालूंगी क्या. That's really always I will cherish that moment. And the second, definitely the Tokyo Olympics when we came back to India. Oh my God, people were crazy. मतलब ना कि women's hockey वापस आई है, and I went to Shahabad. So that reminds me जब 2004 में, you know, इंडिया ने एशिया कप जीता था women's hockey ने. So I went to the station उनको रिसीव करने के लिए, वो माला डालने के लिए. But that moment again come to me after I think 16 years. You know, so that I will always cherish when I close my eyes at night, and you know that makes me so happy कि सच में वो सब हमने, किसी का वो ड्रीम ही होता है सिर्फ, बट हमने वो ड्रीम को जिया है, राइट, एंड हमेशा वो हमारे साथ रहेगा, वो मेमोरीज ना. तो या those two are the most cherished memories. I'll finish off on this line saying, I just wish the journey did not end. I just wish I could see you play. I just wish India gets many more Rani Rampals. I just wish you fulfill your dreams in your second innings as coach, because you are good for sport. Look forward to catching up with you. Couldn't make to the farewell because of the cyclone, but look forward to welcoming you to the conclave, celebrating you more, because this is a friendship I cherish. Thank you very much for being who you are. Thank you, for enriching our sport. And thank you very much for all the memories, Rani Rampal. Thank you very, very much. Thank you.